السلام علیکم آل یوٹیوب ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو آج میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا ولاگ۔ میں بنا رہی تھی بچوں کا ٹفن، اسکول لنچ باکس، تو جس میں نے ان کے لیے بنایا تھا برگر اور فرائز۔ توے کے اوپر زیادہ سارا آئل ڈولا، اس میں نے شامی فرائی کیے، دین انڈے فرائی کیے، کیونکہ میں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ میں سارا آئل اوپر ڈول دو، بار بار کیا ڈالنا، اسی میں سارے کام ہو جائیں گے۔ اسی آئل میں اسی توے کے اوپر میں نے برگرز بن کو اتنا پکایا کہ وہ ہلکے سے کرسپ ہو جائیں۔ دین میں نے آئل والی کڑاہی جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھی تاکہ ساتھ ہی فرائز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے، میں جتنا جلدی کچن میں آؤں، جتنا مرضی جلدی ختم کرنے کا کوشش کروں نا ان کا جو ہے ٹفن، تو اتنا ہی میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ خیر یہ تھا کہ آج تھوڑا کام بھی زیادہ تھا، برگرز بنانے تھے، اتنے سمپل برگر، اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا، پھر بھی یہ تھا کہ میں 9:45 بجے کچن میں آئی تھی، تو بنتے بنتے تقریباً 10:15 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اور میں بچوں کو ٹفن ان کا اس طرح اگر کچھ بنا کے بھیجوں نا فرائنگ سے ریلیٹڈ یا پھر برگرز وغیرہ، تو میں ان کو فریش ہی بنا کے بھیجتی ہوں۔ 10:30 بجے ان کا بریک ٹائم ہوتا ہے، تو میں اسی ٹائم میں ان کو گرم گرم بنا کے بھیجتی ہوں۔ برگر بنس کے اوپر کیچپ لگایا، ٹاپر کے اوپر مایونیز لگایا، پھر شامی رکھا، فرائی انڈا رکھا، دین اس کو سینٹر سے کٹ کر کے لو جی، یہ ہو گیا ان کا ٹفن ریڈی۔ اور اس طرح کا ٹفن جس دن بھی بھیجو نا، بچے چٹ کر کے واپس آتے، خالی ٹفن ہی واپس آتا، ادروائز تو مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے، جو بھی بھیجو نا ان میں سے کچھ نہ کچھ واپس آتا ہی ہے۔ تو جی یمی ٹفن از ریڈی۔ بچوں کی تو آج موجیں لگ گئیں۔ یہاں میں نے بنایا تھا اپنے لیے چائے کا 1 کپ، اور مجھے آرڈر ہوتا ہے کہ خدا کا واسطہ خالی پیٹ چائے مت پیا کرو، ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ یا پھر کچھ اس طرح کا ہیلدی لے لیا کرو۔ تو میں نے لیا تھا بادام، اخروٹ اور ڈیٹس 2-3، یہ تھا میرا ناشتہ۔ چلیں جی آ جاتے ہیں اب اپنی ریسیپی کی طرف۔ آج میں نے بنانا تھا شوربے والی مچھلی کا سالن، ساتھ میں چاول۔ تو ہسبینڈ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ آج نا شوربہ یخنی ٹائپ جو ہے نا وہ مچھلی کا سالن بنا لینا، تو ساتھ میں چاول بنا لینا، کیونکہ ان کی تھوڑی سی نا طبیعت خراب تھی، گلا بھی ان کا درد کر رہا تھا، تو جس دن ان کی اس طرح فلو والا ہو یا بخار ہو یا پھر گلا وغیرہ خراب ہو نا، تو اس دن وہ یہی آرڈر کرتے ہیں کہ مچھلی کا سالن بنا لو شوربے والا۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی، میں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک کے ساتھ ٹرانزیشن کھیل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چیلنج کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میں کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا کہ یہ ٹرانزیشن اچھا تھا یا نہیں۔ لہسن ادرک کو میں نے کوٹ لیا تھا کنڈی ڈنڈے میں، اور پیاز کو اس طرح میں نے اس کیچٹ کے ساتھ کرش کر لیا تھا۔ اب میں نے لے لیا تھا ایک پین، اس میں 2 چمچ بھر کے میں نے گھی کے ڈالے، اور پھر اس میں نے یہ سارا جو پیاز پانی سمیت تھی اس میں ڈال دیا، اور میں نے اس کو اتنا پکایا کہ وہ تھوڑا سا نا ڈارک براؤن کلر مجھے نہیں دینا، کیونکہ اس سے بعد میں مجھے نا ایسے لگتا ہے جیسے وہ سالن یا مسالہ گریوی جو بھی ہے وہ مجھے نا اس کا کڑوا کڑوا سا فیل ہوتا ہے، تو میں صرف لائٹ سا ہی کلر پیاز کو دیتی ہوں۔ تو ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کو تو میں بالکل بھی کلر نہیں دیتی، اس کو صرف میں پکاتی ہوں 3 سے 4 منٹ تک کے لیے، تو بس۔ اور پکانے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا نمک، سرخ مرچی پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، اور ٹماٹر 2 کٹ کر کے۔ ٹرانزیشن میں تو ایک ہی نظر آ رہا ہوگا، تو بعد میں پھر میں نے فریج میں سے ایک اور نکال کے 2 ٹماٹر بڑے سائز کے کاٹ لیے تھے، 3 سے 4 ہری مرچیں کاٹ کے وہ بھی ڈال دی تھیں۔ تو مسالے کو میں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے بھونا تھا، کیونکہ فش کا مسالہ جتنا بھونیں گے نا اتنا ٹیسٹ اس کا اچھا ہے۔ اس کے بعد میں نے ڈرائی ایبس ڈالے تھے، جس میں زیرہ، تیز پات، دال چینی، لونگ، 1 بڑی الائچی، اجوائن، کٹی ہوئی سرخ مرچ اور دھنیا پاؤڈر تھا، وہ میں نے ڈال کے اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے اچھے سے مسالے کی میں نے بھنائی کر لی تھی۔ وہی اگین کہ جتنا مسالہ یہ اچھے سے پکے گا فش کا سالن اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا۔
मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था मछली को मैंने उल्टे रुका, मतलब उसकी स्किन वाली साइड ऊपर थी और जो कटिंग वाली साइड थी ना वो उसकी नीचे मसाले के ऊपर मतलब रखी हुई थी। तो इस तरह मैं मछली को बिना फ्राई किए ही उसमें मसाले में डाल देती हूँ और उसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ना दम पे छोड़ देती हूँ। इस तरह एक तो मछली के अंदर मसालों के सारे फ्लेवर चले जाते हैं, वो अंदर से फीकी नहीं रहती और ऊपर से मछली की जो मखसूस महक होती है ना वो भी नहीं उसमें आ रही होती। और मछली को तो हमने चम्मच बिल्कुल भी लगाना होता ही नहीं, क्योंकि जितना हम उसमें चम्मच चलाते जाएंगे ना मछली के पीसेस वो टूटते जाएंगे और वो मछली तो नहीं होगी, वो फिर मछली का सूप हो जाएगा। तो मछली को बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना होता। इसको बस इस तरह पीसीस लेयर्स में लगा के ना तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए मसाले में दम पे छोड़ देती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ पानी, जितना मुझे शोरबा रखना होता है या फिर जितना मुझे इसका मसाला रखना होता है उस हिसाब से इसमें पानी डाल के फिर अगेन इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं मछली नहीं पकाती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि मछली एक ऐसी डिश है कि जिसको हल्का सा भी सेक लगे ना तो वो गल जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसको ओवर कुक नहीं किया जाता। और ये देखें जी कितना मज़े का सालन मेरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया था लेमन मेरे पास फ्रीज़ हुआ था। आप इसमें 1 से 2 लेमन लाजमी स्क्वीज़ कीजिएगा, इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है खट्टा खट्टा सा। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको डिश आउट। अच्छा, मैंने ना लास्ट वीडियो में नोटिस किया था कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, तो आज मैं बहुत आराम से धीमे से धीरे से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी अभी मैंने सिर्फ थोड़ी सी 2 3 4 वीडियो अपलोड की हैं, तो अभी मेरा चैनल भी नया है तो मैं फ़ास्ट में भी बना के देख रही हूँ, स्लो में भी बना के देख रही हूँ। तो फिर जिस तरह मुझे लगेगा कि मेरी ये वीडियो अच्छी है, मुझे लगेगा, फिर मैं वही कंटेंट आगे कंटिन्यू करूँगी। और वैसे भी अभी तो एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे हैं हर वीडियो पे। साथ में ये तड़का ज़ीरे वाले राइस रेडी हो रहे थे और ये ना फ्रिज में पड़े हुए थे, 2-3 पीस एंड पे बच गए थे तो थोड़ा ड्राई हो गए हुए थे, बच्चे भी नहीं खा रहे तो मैंने सोचा चलो इनका ब्रेड क्रम्स बना लें। अच्छा ये देखें, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, किसी यूट्यूबर ने ऐसे ही बर्तन में डाल के ना मलाई सारी जो वो स्पैचुला या चम्मच या डोई के साथ उसको ऐसे ही सिंपल गोल गोल घुमा के तकरीबन 15 से 20 मिनट उसको ऐसे चम्मच उसमें चलाया तो सारा मक्खन ऊपर इकट्ठा हो गया। और ये ट्रिक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। कोई बिखरावा, कोई खलारा नहीं बर्तनों का, कोई मांझा मांझी नहीं, बाद में बहुत इजी रहा था। अच्छा ये देखें, इतने में आ गए थे ये हस्बैंड और वो लेके आए थे ये हनी। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। बता रहे थे कि सरगोदा से कोई आदमी आता है, वो लेके 7000 पर केजी के हिसाब से मिलता है। ये मार्केट में ना बहुत से लोग उससे ये हनी लेते हैं। ये लेके आए थे तो मुझे तो कोई इतना ख़ास इसका फ्लेवर नहीं लगा, हालांकि बता रहे थे कि वो आदमी जो है बड़ा श्योर था कि ये प्योर हनी है, उनके अपने फार्म्स की मक्खियाँ हैं, वो ख़ुद कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक साफ़ सुथरा, तो कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं है। बट पता नहीं क्यों मुझे इसका टेस्ट ना थोड़ा डिफरेंट लगा कि पहले जो हमारे घर में आता था ना उससे काफ़ी चेंज था इसका जायका ना। एक्चुअली मेरे अब्बू ना कुवैत होते थे तो वहाँ से वो लेके आते थे और इतना वो मज़े का शहद होता था, उसका टेस्ट इतना आउट क्लास होता था ना कि बस। और पाकिस्तान से मैंने इतने शॉपिंग मॉल से, इवन के लोकल मार्केट से भी मैंने लेके देखा है, उसको यूज़ किया है उसको, बट वो टेस्ट जो वहाँ से आता था ना उससे ऐसा मुझे कहीं भी नहीं मिला। खैर जी, यहाँ पे मैंने सारा मक्खन जो है वो देगची में डाल के चूल्हे पे पकने के लिए, घी बनने के लिए रख दिया था। ये था खाने का टाइम तो मैंने कहा कि चलो साथ साथ खाना हो जाएगा और साथ साथ ये देसी घी भी बन जाएगा, इसलिए मैंने स्लो फ्लेम पे ना इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छा निकल आया था। बट पता नहीं क्यों मुझे ना इस दफ़ा लगा था कि इसकी थोड़ी ना क्वान्टिटी थोड़ा सा कम है, बट ये था कि ओवरऑल ना मुझे ये सारा प्रोसेस अच्छा लगा था। और ये देखें जितना यम्मी, इतना मज़े का ये मेरा आज का डिनर रेडी हुआ था। बेसिकली ये जो डिश है ना ये बंगाली डिश है, शोरबा मछली साथ में चावल, वो उनका थोड़ा सा मोटे वाले चावल होते हैं, थोड़े सॉफ्ट चावल होते हैं। अभी हमारा खाना हो ही रहा था तो गेस्ट आ गए थे, फिर उनको पूछा तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं उन्होंने खाना नहीं खाना, बट ये था कि अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग खाना खाएँ, वो पास ऐसे ही बैठे रहे। फिर उनके लिए भी खाना जो है वो टेबल सेट कर दी।
अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं गई थी बाज़ार और बाज़ार में फिर के इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर आके मैं प्रॉपर एक डिनर रेडी करूं। फिर मुझे इतना सौखा आसान काम यही लगा कि मैं शोरबे वाले आलू बनाऊं, साथ में मैंने बना लिए थे थोड़े से पकोड़े। ये कोई इतना मज़े का खाना बनता है ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। रूटीन से हट के थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये खाना जो आता है ना, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी बड़े ही खुश होकर शौक़ से खा लेते हैं। इसमें पकोड़े भी होते हैं, इसमें अंडे भी होते हैं, आलू भी होता है, शोरबा भी होता है। ऐसी डिशेस में ना डिफरेंट वैराइटीज़ आ जाती हैं, जिसको जो चाहिए होता है उसके हिसाब से उसको सर्व कर दो। अगर बच्चे नहीं सालन लेना चाह रहे तो पकौड़ों के साथ उनको केचप के साथ उनको रोटी दे दो, मज़े से खा लेंगे। अगर किसी ने रोटी नहीं खानी तो आलू शोरबे के सालन के साथ उनको चावल दे दो। मतलब ये एक डिश में ना, एक डिनर में मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ आ जाती हैं, जिसको फिर जो चाहिए होता है ना तो फिर आराम से सारे वो खा लेते हैं खुश होके बिना चूं चां किए। तो फिर हमें भी टेंशन नहीं होती कि आए आज क्या बनाएं, आज क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, बड़े क्या खाएंगे। ये सारे बड़े खुश होके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट रेडी करने लगी थी। इसमें मैंने डाल लिया था सालन और इसको कुछ इतना नहीं करना, इसमें सिर्फ सालन डालना है। आलू को पीस लेंगे चम्मच के साथ, देन इसमें अंडे रखेंगे, फिर इसमें डाल देंगे पकोड़े छोटे छोटे पीस करके और उन पकोड़ों के ऊपर थोड़ा सा शोरबा और डाल देंगे ताकि वो सोख हो जाए। और आप लोग भी ना प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा ये डिश जो है ना लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर 100% श्योर कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। ये सिंपल सी ऑथेंटिक रेसिपी बड़ी मज़े की होती है। और ये रही सिंपल और यम्मी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज़ आजकल डेंगू फीवर बहुत इन है पंजाब में। अल्लाह हाफिज़।